I would like to welcome our today's guest speaker, Mr. Gaurav Bansal from 100 Plus. Sir, welcome aboard, and thank you so much for taking this session for our MBA and PGDM batch. Guys, let me just give you a quick background about Mr. Bansal over here. He has done his MBA from Symbiosis Institute of Business Management, Pune, and he's a mentor and an entrepreneur. And he was also selected as one of the top 30 promising Indian youth leader, and this was under a program which was run by Indo-American Center, sponsored by US Department of State. He has done many assignments, and in his last assignment, he has founded and scaled and assisted e-commerce startup 100 Plus. He's taken this from ideation stage to early growth stage with 800 plus interns. That's a big number. He has total more than 10 years of experience with more than 7 years of experience as an entrepreneur, and more than 4 years of experience in building and scaling startups. That's what the theme of today's session is. He's also an author. He's written a book on Bitcoin basics, logic and magic of digital gold. Wow, that sounds impressive. And his recent achievement is that he has been selected by Massachusetts Institute of Technology for his entrepreneurial bootcamp at Croatia. Welcome aboard, sir. Thank you so much for taking this session. I welcome you on behalf of the entire Doon Business School family. And now over to you, sir. The stage is all yours. Thank you, Professor Gaurav, and really excited to see. 50 is a good number for me, and I'm really excited to exchange the energy today. So, सबसे पहले startup से बात करते हैं. What exactly is a startup and what's mean by it? Okay, the basic difference between a business and a startup is a startup focuses on a few parameters like the impact. B, it solves a problem, and C, the most important element of a startup is a scale. A startup is envisioning something of the future which has really a deep impact and a big scale. Now there are two different things: a deep impact and a big scale. मैं एक example की बात करता हूँ. Let's say I open up a shop of selling kitchen products, right? So will that be called a startup or a business? That would be called a business, because technically what I'm doing is I'm trading. I'm arbitraging on the differences of the price. मैं किसी और प्राइस पे खरीद रहा हूँ, किसी और प्राइस पे बेच रहा हूँ. मेरा सिंपल सा फोकस मुनाफे पर है. यहाँ पे मेरा फोकस इस बात पे ज्यादा है कि हाँ, उस मार्केट में, जिस मार्केट में मैं अपनी शॉप खोल रहा हूँ, वहां पे लोगों के अंदर एक किचन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो वहां पे मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे और वो प्रोडक्ट उतने दाम पे बिक जाएंगे कि जितने दाम पे मैंने खरीदा उससे ज्यादा दाम होगा, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, so that I can earn some money. So technically in a business, the focus is on money, and a startup, the focus is more on scale. Yes, definitely being an enterprise, being a professional entity, everyone at the end of the day works for the profit and for the money at the end of the day. But that's at the end of the day. So the most important thing is the scale. The scale is something that differentiates between a business and a startup. The another important thing is, in a business, you work more about the arbitrage, you work more about the opportunity. In a startup, you work more on the problem statement or more on the impact. कभी भी आपको कुछ भी चीज अगर करनी है, कभी भी, तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि क्या वो कोई एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, या फिर आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर को एनविजन कर सको और आप ये प्रिडिक्ट कर सको कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो नहीं है एग्जिस्टिंग, बट भविष्य में आने वाले समय में there would be lot many people who would die for it or who would really love it, and it will add a strong value into the lives of our customer. Value addition बड़ा important part हो जाता है यहाँ पे. मैं दोनों के एग्जांपल देता हूँ. स्टार्टअप को शुरू करने से पहले दो चीजें, अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ. वन इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप do start with an existing problem statement or existing opportunity scenario, right? The less common one, मैं दोनों के एग्जांपल दूंगा आपको. The less common one is the people who envision the future. वो सोच पाते हैं कि भविष्य ऐसा होगा. ये आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, बट इफ आई बिल्ड दिस प्रोडक्ट और दीज सर्विसेज, इससे बहुत भारी मात्रा में लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, उनकी लाइफ में there would be a lot of value addition in their life and people gonna love it, right? There would be a lot of traction and demand for it. दोनों का एग्जांपल देता हूं. सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप I see in the country today are the examples of the startup that started with some sort of a problem statement. Can anyone give me any example of a startup that started with a defined problem statement कि मार्केट में, बाजार में या कंज्यूमर्स के बीच
ये प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग थी और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था, एंड इसलिए प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि इसलिए बड़ी हो गई. एनीवन कैन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इट? So Oyo Urban Club. Exactly, Vishal, correct. Oyo and Urban Clap. And anyone else? Oyo की problem statement कौन बताएगा other than Vishal? What was the problem statement that Oyo served? Anyone here? Oyo is the one of the greatest Indian startups built, जिसने संसार में झंडे गाड़े. I'm really proud of Oyo. आज क्या stage है उसकी, it does not matter to me, but personally I'm really proud of Oyo being an Indian startup. कोई example देगा? What was the problem statement that Oyo solved? Oyo was a problem statement driven startup. कोई बताएगा what was the problem statement? Okay, बड़ा ही simple सा था. When you go to a budget hotel, the things were not organized. The quality of the services were not well defined and standardized. They standardize the quality of services. They standardize your expectation. They standardize the overall value that would receive in exchange of the money that you would pay to any budget hotel. इसे साधारण भाषा में कह दूं तो बजट होटल यानी कि सस्ते होटलों में आपके 1000 रुपए के बदले में जो भी आपको सर्विसेज, रूम वगैरह जो भी मिलेगा वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया था और उसके पैरामीटर इतने मेंटेन कर दिए थे कि एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशन के अबव थे वो, जिससे उन्हें डिलाइट अचीव हो रहा था. यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं. वो वर्टिकल था, वो उनका एड ऑन, उसे बोलते हैं एड ऑन या वैल्यू एडेड फीचर था उनका. दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद व्हिच ओयो स्टार्टेड, क्योंकि वो बहुत लेटर आया था. इसका एग्जांपल ये भी आप देखेंगे, वो कपल वाली सिचुएशन बहुत लेटर आई थी. एनीवन कि कोई और फिर से समझाएगा? ओयो ने they have changed their structure for the middle class people. They have changed their price factor for the middle class people. तो मिडिल क्लास पीपल को क्वालिटी होटल सर्विसेज स्टैंडर्डाइज हो, मतलब कि मैं किसी भी ओयो में जाऊं, फॉर एग्जांपल इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए. आप किसी भी ओयो में जाएंगे, आपको यूनिफॉर्मिटी इन सर्विसेज मिलेगी. देयर वुड बी समवन एट द रिसेप्शन टू ग्रीट यू एंड टू अटेंड यू. When you would go to the room, it would be neat and clean and tidy, right? When you would go to the bathroom, it would have a toothpaste, the toothbrush, and some other sanitaries that are expected. You would definitely have a clean towel and other things that you may need. ये जो चीज जो मिसिंग थी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि भाई साहब ये गारंटी नहीं थी. हम मेक माई ट्रिप पे होटल की फोटोज देख लेते थे, रिव्यू देख लेते थे, बट उसमें टाइम लगता है. मैं केवल ओयो का नाम पढ़ूं, मैं केवल एक होटल का नाम लूं कि ये ओयो होटल है, मुझे कुछ ना चेक करना पड़े. was the difference was a strong value addition by them in the hotel industry in India. कि आप एक ब्रांड का नाम ले रहे हो और आप ये गारंटी ले सकते हो. अगर मैं संचित का नाम ले रहा हूं, मैं ये गारंटी ले लूं, मैं संचन के नाम ले रहा हूं, मैं गारंटी ले लूं बॉस कि अगर संचन इस काम को कर रहा है तो मैं एक गारंटी दे रहा हूं ये काम 100% विद इन द टाइम होगा. मैं अगर आस्था का नाम ले रहा हूं तो मैं ये गारंटी ले लो कि अगर आस्था ये काम कर रही है तो बिलीव मी देयर वुड बी सम इनोवेटिव सॉल्यूशन टू इट. तो ओयो ने वो जो बजट होटल्स के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी कि मिनिमम द बेसिक लेवल ऑफ डिफाइंड सर्विसेज, द बेसिक पैरामीटर्स वो उन्होंने बढ़ा दिए थे, स्टैंडर्डाइज कर दिए थे और गारंटी दी थी, एक प्रॉमिस डिलीवर करा था जिससे वो एक बड़ी ब्रांड बन गए थे. तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं. प्रॉमिस, किसी भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड जब तक कंसिस्टेंटली सेम प्रॉमिस को डिलीवर नहीं करेगी वो ब्रांड नहीं बन सकती. ब्रांड इन इटसेल्फ इज अ सिनोनिमस ऑफ प्रॉमिस ऑफ सर्टेन सेट्स ऑफ फीचर दैट यू रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू पे. डिलाइट, जब तक आपके कस्टमर को डिलाइट अचीव नहीं होगा आपका कस्टमर वापस दोबारा नहीं आएगा. आपका कस्टमर आपको जो पैसे देता है वो एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के देता है, और जब तक वो एक्सपेक्टेशंस ना केवल मीट होंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, कस्टमर उसके अबव नहीं जाएगा, तो डिलाइट अचीव नहीं होगा, तो कस्टमर वापस नहीं आएगा. दो बातों का ध्यान रखना. मैं यहाँ पे आप सब लोग ये छोटी छोटी जार्गन्स है, तो प्लीज यू कैन नोट इट डाउन इफ यू हैव पेन एंड पेपर, और इफ द सेशन इज ऑन रिकॉर्ड यू कैन वर्क इट ऑन इट लेटर. सो थोड़ा सा जाके गूगल करिए हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड. तो ब्रांड का एक मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कस्टमर डिलाइट का एग्जांपल दिया. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहला सिनेरियो बात करें, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्टार्टअप यू नीड टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. पहली चीज. दूसरी चीज, देयर आर सर्टेन स्टार्टअप जो बिना किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के शुरू हुई हैं और उन्होंने दुनिया बदल दी, उन्होंने भविष्य को देखा. कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इट? एनीवन एन एग्जांपल ऑफ इट? कुछ स्टार्टअप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ही नहीं वो, बट उन्होंने क्रिएट कर दिया, मार्केट को ही रीडिफाइन कर दिया. इसे बोलते हैं मार्केट को रीडिफाइन कर देना, पूरा एक नई दिशा दे देना. किसी ने सोचा ही नहीं था यार ये भी हो सकता है. जियो मॉडल इज समथिंग एल्स. वो बिजनेस की स्ट्रेटजी, दैट्स कॉल्ड प्रीडिक्टिव. अलीबाबा
दैट्स कॉल्ड प्रेडेटरी प्राइसिंग. हाँ, अलीबाबा व्हाट इट डिड इन दोस टाइम्स, उस वक्त नहीं सोचा जा रहा था. आई वुड डेफिनेटली से दैट एज अ यस. और जिससे मैं खुद भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूं, दैट इज ऑफ द एप्पल. I hope everyone have gone through the case study of Apple over here. If not, please go through the case study of Apple over here. ये मैं समझाऊंगा नहीं कि यहाँ पर what was it that he worked upon. कोई बताना चाहेगा? Why is Steve Jobs ने जो Apple build करी थी, what was so different? वो एक problem statement पे नहीं work कर रहा था. He was working on something else. Apple के लैपटॉप में क्या खास बात होती है? Anyone who has worked on Mac versus personal computer by Windows? Anyone who has noticed the difference? Okay, the answer is related to calligraphy and Microsoft and MacBook. Yes, Sanjay. The security system. This is a very high quality of value added, guys. This is the value added feature. ये किसी अगर सिक्योरिटी फीचर होना बीज नहीं था, अगर वो बीज होता तो वो साइबर सिक्योरिटी की कंपनी बनते, वो लैपटॉप की कंपनी नहीं बनते. ये जो आपने एग्जांपल दिया वैल्यू एडेड फीचर, सबसे पहली बात मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक बड़ा फैक्टर पकड़ो. वो या तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, वो कुछ ऐसा हो जो सोचा ही ना हो सकता है वो प्रॉब्लम ही ना हो, बट वो भविष्य को बदल दे. बाकी उसके अराउंड जो आप बिल्डअप करते हैं वो वैल्यू एडेड फीचर होते हैं जो प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं. जैसे एप्पल के केस में लैपटॉप का सिक्योरिटी बहुत हाई होना इज अ वैल्यू एडेड फीचर, बट हाई सिक्योरिटी की वजह से उसने एक लैपटॉप बनाया. वुड नॉट एग्री टू दैट. आप लोग इस अंतर को समझ पा रहे हैं? तो फिर से आई रिपीट अगेन, कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले वर्क ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और समथिंग दैट यू कैन एनविजन ऑन फीचर. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड देन बिल्ड रेस्ट ऑफ योर वैल्यू एडेड फीचर्स. अब आप लोगों में से अगर किसी को स्टार्टअप करनी है तो कैसे करें, राइट? जो कि मोस्ट ऑफ द सवाल है लोगों का. सबसे पहली चीज आप लोगों को इन दो हिस्सों में डिफरेंशिएट करना है. पहला हिस्सा जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स होती है, आई टॉक ऑन दैट मोर राइट नाउ, which is working on a problem statement. First of all, you all need to work on a problem statement. And how do we work on a problem statement over here? There are two methodologies. Most of you are MBA over here. In your first year, you would be taught a beautiful subject called market research. बहुत अच्छे से करना उसे. और मार्केट रिसर्च के जितने भी असाइनमेंट हो ना, बिल्कुल मन लगा के करना. दिस इज समथिंग which will really change your journey. As an MBA, it will really mature you a lot. तो बी चाहे आप फाइनेंस के हो चाहे एचआर के हो, डू नॉट मिस द सब्जेक्ट कॉल्ड मार्केट रिसर्च, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सबको अपने आप को बेचना होगा. किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से, किसी ना किसी से इंटरेक्ट करना होगा, ओपिनियंस बिल्ड करेंगे. वहां पे मार्केट रिसर्च कम्स वेरी हैंडफुल. तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, उसकी मार्केट रिसर्च करिए. मार्केट रिसर्च को आज मैं साधारण भाषा में समझाऊंगा, लेट हो गए हम लोग. या तो आप लोग सेकेंडरी रिसर्च करिए, जिसे हम गूगलिंग बोलते हैं आज की दुनिया में. तो सेकेंडरी रिसर्च केवल गूगलिंग तक नहीं जुड़ी होती है. गो टू लाइब्रेरी, चेक द न्यूज़पेपर वेबसाइट्स, चेक द रिपोर्ट्स. तो मार्केट रिसर्च में, सेकेंडरी रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप उस इंडस्ट्री की, जिस इंडस्ट्री की आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की कोई जर्नल्स, कोई मैगजीन्स या रिलेटेड मार्केट रिसर्च ऑथेंटिक सोर्सेज से पहले वो रिपोर्ट निकालिए, स्टडी करिए. मैं अपना एग्जांपल देता हूं. माय स्टार्टअप कॉल्ड 100+. How I started it, I was working with Ace Enterprises. I was typically into an FMCG sales and distribution role. और मैं रूरल मार्केट को बहुत घूम चुका था. तो I was going through a report by Bain and Company which talked about a $50 billion opportunity. और मेरे को शौक था रिपोर्ट्स पढ़ने का, मजा आता था. मैं उस रिपोर्ट को पढ़ता जा रहा था और जितने भी उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके रिलेटेड फैक्ट्स बिल्डअप करे थे, आई कुड बिल्ड अप अ बिजनेस केस. और मुझे लगा यार ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट 50 बिलियन, और मुझे लगा कि यार ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ. मुझे ऐसा क्यों लगा मैं सॉल्व कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास उसका पास्ट रेलेवेंट एक्सपोजर था. मुझे क्यों लगा? क्योंकि मेरे पास जितना तजुर्बा था, मुझे लग रहा था कि हाँ, ये जो मैं बिजनेस मॉडल बिल्डअप कर रहा हूँ ये चलेगा. ठीक है ना? बट इसे हम बोलते हैं assumption. Another keyword to note over here is assumption. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्रिवन स्टार्टअप का आइडिया है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वैलिडेट करिए विद लॉट ऑफ सेकेंडरी रिसर्च. सेकेंडरी रिसर्च के लिए क्या करना है? उस मार्केट की रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह पकड़िए, रीड एज मच एज यू कैन. देखो कि जो प्रॉब्लम तुम सोचो क्या वो वास्तव में प्रॉब्लम है कि नहीं है, या तुम्हारी मनगढ़ंत प्रॉब्लम है. और दूसरी, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, लिख लो आप लोग, स्टार्टअप शुड डेफिनेटली हैव अ स्केल इन इट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम केवल 50 लोगों की प्रॉब्लम है या 1000 लोगों की प्रॉब्लम है. यार वो प्रॉब्लम बड़ी होनी चाहिए, राइट? उसकी ज्योग्राफी या डेमोग्राफी बड़ी होनी चाहिए जिसमें आप उसे सर्व कर सको. ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग इज
you can use Google for secondary research, which is one of the most easiest thing to do. When you Google, first look for the authentic resources, like I talked about the research report and the industry report, or there are a lot of organization, जैसे हमारे रिटेल में IIBF है, there are lot many organization talks about it, and the most important, go for the newspaper things. The second thing is when you do a second research, you study कि existing players क्या कर रहे हैं, और सबसे important part होता है existing players की journey को map करना. कभी भी आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि आपका ये स्टार्टअप आइडिया यूनिक है, यार ये तो किसी और ने सोचा ही नहीं होगा, मैं तो दावा कर सकता हूं, आप बिल्कुल मेरी बात को लिख लो कि आप उस दिन गलत हो गए. हमें मालूम नहीं होता यार कितनी स्टोरीज स्टार्टअप की तो पब्लिश ही नहीं हो पाती हैं, वेबसाइट तक पे नहीं आ पाती, तो आपकी गूगलिंग में ही नहीं आ पाएंगी. कोई भी स्टार्टअप आइडिया मेरी जिंदगी में आज तक, मैं अपने खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि आज तक एक स्टार्टअप आइडिया ऐसा नहीं रहा जो मुझे लगा केवल अकेले मैंने सोचा है या इस बंदे का यूनिक है और उस पर किसी ने भविष्य पास्ट में काम ही ना करा. सो बहुत सारे, जब आप अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर रहे होंगे ना, बहुत सारी चीजें ना आपको रिसर्च रिपोर्ट भी नहीं बता पाएंगी. कई बार अपना भविष्य सोचना होता है, उसे बिल्डअप करना होता है, और उसमें ना अंदर से, दिल से जब तक आपकी आवाज ना आए और जब तक 3 महीने तक वो यस टिकी ना रहे दिमाग में विदाउट 0% ऑफ द डाउट, तब तक आगे ही मत बढ़ना. तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, पिक अप, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फॉर दोज गूगल लॉट, रीड अ लॉट फॉर नेक्स्ट 3 months, 1 to 3 months, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एटलीस्ट 1 month पढ़ो, केवल रीड करो, चेक करो. सेकंड, स्कैन द एग्जिस्टिंग प्लेयर. हमेशा हर मार्केट में जिस भी स्टार्टअप आइडिया पे आप हो, मैं दावा कर सकता हूं यार किसी न किसी ने पक्का से काम कराओ किसी न किसी स्टेज पे. वो एक अलग बात है, वो फेल हो गया हो, छोड़ दिया, क्विट कर दिया हो, ढूंढो उन लोगों को, या एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स है उनको ढूंढो, उनकी जर्नी को पकड़ो, उनको देखो उन्होंने क्या करा है, what is it they are offering and what is so different about you. Step number 3, in fact step number 3 थोड़ा पहले होना चाहिए step number 2 से, competitor analysis से पहले होना चाहिए, market analysis से पहले होना चाहिए. Step number 3, talk to the stakeholders. What do I mean by stakeholder? केवल कस्टमर नहीं होते हैं. मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा. अगर मैं रिटेल में एक प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूं, लेट्स से कि मैं एक बनाना ड्रिंक बेचना चाहता हूं, तो मेरे स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे? कस्टमर्स. मेरे स्टेक होल्डर्स होंगे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे होलसेलर्स, मेरे रिटेलर्स, उस मार्केट के सेल्समैन जो इस टाइप के प्रोडक्ट को बेचते हैं. स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी इकोसिस्टम को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को हम स्टेक होल्डर बोलते हैं. तो कभी भी अपने स्टार्टअप आइडिया को लेके बात करने जाओ तो केवल कस्टमर से मत बात करो. दैट इज जस्ट 30% ऑफ द व्यू. केवल मैक्सिमम स्टार्टअप्स फेल बिकॉज दे जस्ट टॉक ओनली टू द कस्टमर, दे नेवर टॉक टू अदर स्टेक होल्डर्स. ये गलती कभी मत करना, मार्क दैट एज अ गोल्डन पॉइंट. तो मैं अगर एक FMCG की ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले तो मैं कस्टमर से बात करूंगा ही करूंगा, क्योंकि कस्टमर भगवान है. ये तो बिल्कुल लिख लो, ये माथे पे कहीं भी लिख लो अपने कमरे में. इफ यू स्टार्टिंग अप, योर कस्टमर इज योर गॉड. बट कस्टमर, एक उसके साथ एक रूल भी लिखना जो पहली लाइन को रॉन्ग करता है, कस्टमर डज नॉट नो एवरीथिंग. कस्टमर सब कुछ नहीं जानता, कस्टमर कई बार अपने बारे में ही नहीं जानता है. तो कभी भी कस्टमर सर्वे करो. ड्रॉप दिस हैबिट ऑफ डूइंग कस्टमर सर्विस वाई गूगल फॉर्म बनाया, फ्लोट कर दिया, लोगों ने जवाब भरे और आपने कंक्लूड कर दिया वाओ माय आइडिया इज बेस्ट. दैट इन माय ओपिनियन इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट इन द अर्ली स्टेज. In the early stage, go to the customer directly and conduct a deep questionnaire. खुद से बात करो, खुल के बात करो, एक कस्टमर से आधा घंटे बात करो, उन सब सेशंस को रिकॉर्ड करो, उन्हें 10 बार सुनो और देखो व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड. तो पहले हिस्से में हम कस्टमर से नॉलेज ड्राइव करते हैं राउंड 1 में. फिर राउंड 2 में जब हम नॉलेज ड्राइव कर लेते हैं, पहले राउंड में कम से कम अपने मार्केट को डिफाइन करने का कम से कम 30 ऐसे लोगों से बात करो जो आपकी डेमोग्राफिक्स में आते हो. देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड टारगेट सेगमेंट. देयर इज समथिंग कॉल्ड सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपकी मार्केटिंग में चैप्टर आएगा. कोई भी आदमी अगर स्टार्टअप करना चाहता है, मार्केटिंग के फर्स्ट चैप्टर को, फ्लिप कॉटलर को मिस मत करना. देयर आर 3 थिंग्स, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. प्लीज नोट इट डाउन, इसे गूगल करके पढ़ लेना. राइट, ये वैसे भी हमारा करंट टॉपिक है सर ये. ओके, दैट्स अ करंट टॉपिक. ठीक है, तो फिर मैं बोल देता हूं. मतलब सबसे पहले स्टार्टअप आइडिया आया, पहला काम स्टार्टअप आइडिया आया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे रिसर्च करी आपने. शुरुआत करने के 2 तरीके, इधर स्टार्ट विद योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और स्टार्ट विद समथिंग दैट यू थिंक कैन रियली चेंज द फ्यूचर. मैंने उसके 2 एग्जांपल दिए, कोक का एग्जांपल दिया है, एक स्टीव जॉब्स का दिया है. राइट. सेकंड थिंग इज व्हेन यू कम विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैंने सबसे पहले बोला डू अ लॉट ऑफ सेकेंडरी मार्केट रिसर्च. पहला स्टेप प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन अ सेकेंडरी मार्केट रिसर्च में मैंने बोला है गूगल जाओ, गूगल पे फिर मैंने अगेन बोला है कि go to n number of research publications, journals, news and the mentors, उस फील्ड के जो नॉलेज एक्सपर्ट है उन सबकी बातों को पढ़ो. देन सेकंड फिर मैंने बोला है कि कस्टमर से बात करो.
थर्ड, फिर मैंने बोला कस्टमर से बात करने का, फिर प्लेयर्स देखो कौन कौन से प्लेयर्स एग्जिस्टिंग है, पुराने प्लेयर्स देखो, नए प्लेयर्स की डिटेल में स्टडी मत करना। यहाँ पे मैं बताऊंगा क्यों। कभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट नोट कर लो, कभी भी अपने मार्केट रिसर्च आइडिया में अपने कॉम्पिटिटर को स्टार्टिंग की स्टेज में जब तक अपना सॉल्यूशन बिल्ड ना कर लो, बहुत डिटेल स्टडी मत करना। हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्ट बायस हो जाए। कई बार ऐसा होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है कि कॉम्पिटिटर को इतना पढ़ लेते हैं कि वो कॉम्पिटिटर का ही रेप्लिका बना देते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के साथ। इतना भी मत पढ़ो कॉम्पिटिटर को, यू एंड अप गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, राइट। सो उसे थोड़ा लेट लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगलिंग करनी है, रिसर्च करनी है, सेकंड रिसर्च करनी है, फिर तुरंत इमीडिएटली डीप क्वेश्चनेयर करने हैं। द सेकंड स्टेप वुड बी गो एंड टॉक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर स्टेक होल्डर्स इन योर इकोसिस्टम, जिसमें सबसे पहले कस्टमर आते हैं। कम से कम 30 कस्टमर से डिटेल आधा घंटे बात करो। ये 30 कस्टमर से बात करने के बाद बाकी एक प्रोडक्ट को डिफाइन करो। थर्ड स्टेप इज डिफाइन योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। बीच में एक स्टेप मिस हो गया, कस्टमर से बात करने से पहले अपने कस्टमर को डिफाइन करो। कस्टमर को डिफाइन करने को बोलते हैं टारगेटिंग एंड सेगमेंटिंग। उसके डेमोग्राफिक्स होते हैं, साधारण भाषा में समझाऊं तो आपका कस्टमर क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उठता है, क्या बैठता है, कहां सोता है, कहां जगता है, कहां रोता है। जितना कुछ अपने कस्टमर के पास, जितने नजदीक उसके जाओगे, जितना जानोगे, जितना उसकी जिंदगी को जियोगे, जितना उसकी जरूरतों को समझ पाओगे, उतना अपने बेहतर प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाओगे। तो डिफाइन योर प्रोडक्ट, टॉप डिफाइन करने के बाद कस्टमर को, डिफाइन योर मार्केट, जिसे हम टारगेट सेगमेंट बोलते हैं। फिर देन गो टू योर टारगेट सेगमेंट, 30 लोगों से कम बात करो। फिर प्रोडक्ट को डिफाइन करो। फिर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के बाद फिर बाकी के स्टेक होल्डर्स के पास जाओ। जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट का मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं एक बनाना ड्रिंक बना रहा हूं, एक बनाना फ्लेवर की ड्रिंक बना रहा हूं, तो फिर मैं जाऊंगा रिटेलर के पास, भैया मैं ये बनाना ड्रिंक बनाना चाह रहा हूं, इसकी ऐसे ऐसे पैकेजिंग है, ये प्राइसिंग है, ये क्या चल पाएगी। वो कहेगा भग जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर मैं जाऊंगा सेल्समैन के पास, जो किसी कंपनी का सेल्समैन होगा, यार आई एम ट्राइंग टू डू सो एंड सो, बिल्ड सो एंड सो प्रोडक्ट एंड दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अराउंड। वो अपनी अलग राय देगा। तो उन सबकी राय लो, उन सबकी राय को लेकर देखो कि तुम बहुत यहाँ पे तुम अब गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी भी बना पाओगे। और जितने भी ये इनिशियल स्टेजेस में डिस्कशंस करो, सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करो। बिलीव मी, जब भी हम एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, अगर इफ यू डू नॉट हैव अ रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, देयर इज लॉट टू लर्न अबाउट इट। To all those people who start right from zero without any relevant industry experience, count me, it takes at least 3 years to learn any industry in detail. कम से कम 3 साल लग जाते हैं भाई। आपको क्या लग रहा है ओला, उबर, ओयो वगैरह ने शुरू करा तो शुरुआत में डे 1 पे वो इस इंडस्ट्री को सीख चुके थे? नहीं यार, हर एंटरप्रेन्योर की एक अपनी लर्निंग जर्नी होती है। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नॉलेज, और नेवर एवर एस्टिमेट कि तुम्हें सब कुछ आ गया है। कम से कम 3 साल अपने आप को देना, अगर रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है तो। ये शुरुआत की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, दे वुड कम रियली हैंडी टू यू, और बार बार सुनोगे, सीखने में आएंगे। फिर अपने प्रोडक्ट को और स्ट्रीमलाइन डिफाइन करो, और जब लगे कि यार मैंने अपने प्रोडक्ट को फॉल डिफाइन कर लिया है, अब जाओ कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड बेंचमार्किंग। मार्केट में जितने भी प्लेयर जो जिंदा हैं या जो मर चुके हैं, उठाओ उनके प्रोडक्ट को, जितना नजदीक से जान सकते हो जानो। उनके प्रोडक्ट को जानने के लिए ना केवल उनके प्रोडक्ट को स्कैन करो, उनकी बैलेंस शीट्स निकालो, P&L से निकालो, उनके मार्केट में जाके रिटेलरों से। मैं यहाँ पे अपने एग्जांपल की बात करूंगा, अगर बनाना की, अगर मैं कॉम्पिटिटर रिसर्च करूंगा तो मैं केवल प्रोडक्ट को रिसर्च नहीं करूंगा, मैं जाके उनके प्रोडक्ट को खरीदूंगा, पी के देखूंगा, मैं उस दुकानदार के पास जाऊंगा जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, उस होलसेलर के पास जाऊंगा, उससे समझूंगा। मैं अपने 3-4 मेजर कॉम्पिटिटर को बेंचमार्क करूंगा और 1 महीने के लिए घुस जाऊंगा। सो पहला 1 महीना तो केवल रिसर्च को देना है कम से कम। अगला 1 महीना डिफाइनिंग योर प्रोडक्ट, पहला 1 महीना सेकेंडरी रिसर्च को देना, अगला 1 महीना केवल स्टेक होल्डर बेस्ड ओपन मार्केट रिसर्च को देना है, अगला 1 महीना कॉम्पिटिटर एनालिसिस को देना है। उसके बाद जब कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लो, देन अगेन रीडिफाइन योर प्रोडक्ट ऑफरिंग। फिर सेकंड स्टेज ऑफ रीडिफाइनिंग योर प्रोडक्ट ऑफरिंग। अब इस सेकंड स्टेज ऑफ रीडिफाइनिंग योर प्रोडक्ट ऑफरिंग के बाद आपको अगेन फिर से आपको एक कस्टमर सर्वे करना, और ये आपको बड़ा करना है। अगर मैं एक एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं तो मैं कम से कम 300 कस्टमर का सर्वे कर रहा हूं। ये हो गया B2C एग्जांपल। B2C इज बिजनेस टू कस्टमर। अगर मैं B2B प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूं तो मैं कम से कम B2B में मैं अपने टारगेट सेगमेंट में 30 से 50 कंपनियों का ये लास्ट स्टेज का सर्वे करूंगा। इस सर्वे को मल्टीपल चॉइसेस या मैं क्लोज एंडेड सर्वे में करूंगा। व्हाट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, वो मार्केट रिसर्च में समझा दिया जाएगा, ठीक है। और अभी शुरुआती फेज में लिकर्ट स्केल से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना, अगर अच्छे से यूज कर सको तो ठीक है। ये जो मेरी लास्ट स्टेज ऑफ मार्केट रिसर्च होगी, ये प्राइमरी मार्केट रिसर्च कहलाती है। ये मैं क्वेश्चनर की मदद से करूंगा।
इसमें मेरे आंसर्स बहुत वेल डिफाइंड होंगे ताकि मैं बहुत माइन्यूटली डिफाइन कर सकूं। अब गलती क्या होती है, मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स स्टार्ट विद दिस एज द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हिच आइडली शुड बी अ वेरी लेटर पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। सर कॉम्पिटिटर रिसर्च के बाद क्या करना है? कॉम्पिटिटर के बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद डीप मार्केट रिसर्च करनी है। क्या ओके सर? क्वेश्चनेयर की मदद से, क्वेश्चनेयर की मदद से शुरुआत में नहीं करनी है मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद करनी है। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों के सवाल लेता हूं जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर कर दिए। सबसे पहला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, शुड आई चूज टू लॉन्च अ स्टार्टअप, ज्वाइन अ जॉब? भैया देखो, जितने भी बच्चों को ये वाला डाउट होता है ना स्टार्टअप वर्सेस जॉब, मेरा कहना है जॉब ज्वाइन कर लो। स्टार्टअप उन्हीं आदमी को करनी चाहिए जो अपने बारे में, अपने आइडिया को लेके 200% श्योर है और इतनी तुम्हारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि भाई देखो कि कम से कम अगर स्टार्टअप से कमा नहीं रहे हो तो यू डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंट। स्टार्टअप इज अ हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट and your time is the most important currency. So let's say if you are married, if you have kids, if you have dependent parents and if you are in immediate need of monthly recurring money, तो भैया स्टार्टअप मत करना, जॉब ज्वाइन कर लो, ठीक है। if you do not have dependent parents, wife and children, A, and B, if you are very sure of your idea, you are very sure of your research, और सबसे बड़ी बात भाई साहब, तुम्हें मालूम तुम्हारा मन नहीं लगेगा जॉब में, तो भैया जॉब वाले का भी नुकसान मत करो, अपनी भी जिंदगी मत बर्बाद करो, स्टार्टअप कर लो। व्हाट इज एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पुशिंग, व्हाट इज अ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी? ठीक है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होती है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, राइट, स्वॉट क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। व्हाट इज अ स्वॉट एंड व्हाट इज प्री मनी, पोस्ट मनी, व्हाट आर द फाइनेंशियल, ये सब कवर कर लेना। व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, ये इतनी बेसिक जार्गन सभी के लिए कवर कर लेना। बता देता हूँ, स्वॉट होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं मार्केट के कॉम्पिटिटर से और हम हर कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ लिखते हैं, उसकी क्या अच्छी बातें, क्या खराब बातें हैं और ओवरऑल क्या हमारे कॉम्पिटिटर से हमें क्या थ्रेट्स हैं और हमारे कॉम्पिटिटर के विज़ावी क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मार्केटिंग के मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 चैप्टर्स में ही आ जाएगा। स्वॉट को आप गूगल करना। स्वॉट का सिंपल सा मतलब ये है, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी विज़ावी टू योर कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी और आपके कॉम्पिटिटर की क्या है। इसका मतलब हाउ वेल डू यू नो योर कॉम्पिटिशन एंड योर मार्केट, इसे स्वॉट बोलते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री मनी, पोस्ट मनी, अभी नहीं बता रहा, टाइम इज रनिंग अप, गूगल कर लेना। देयर इज समथिंग कॉल्ड गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी का सिंपल सा मतलब होता है, व्हाट इज योर मार्केट प्लान फॉर फर्स्ट ईयर, for next 3 years and next 5 years that will help you generate money, that will help you generate revenue. I repeat, what is your market plan? किन लोगों के पास जाओगे, कैसे सेल्स करोगे। यानी कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में कवर होता है आपका 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में आता है प्लेस इज योर पार्ट ऑफ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बनाना ड्रिंक बना रहा हूं तो मेरी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कवर होना चाहिए कि मैं केवल ऑनलाइन अपनी बनाना ड्रिंक को बेचूंगा कि मैं ऑफलाइन दुकानदारों के थ्रू भी बेचूंगा, या मैं केवल दुकानदारों के थ्रू बेचूंगा, या मैं केवल ऑनलाइन बेचूंगा। तो ये मेरा गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी का हिस्सा, वन ऑफ द हिस्सा बनेगा। फिर से रिपीट करूं, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी और एंटायर मार्केटिंग प्लान एंड योर एंटायर सेल्स एफर्ट्स दैट द बोथ कंबाइन टुगेदर एंड्स अप ब्रिंगिंग रेवेन्यू एंड व्हिच इज डिफाइंड इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में क्या करोगे, अगले 3 साल में क्या करोगे और 5 साल में क्या करोगे, या इस तरह भी कर सकते हो क्यूमुलेटिवली, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 3 years एंड फर्स्ट 5, कैसे भी कर सकते हो, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू जार्गन्स दैट यू कैन सी ओवर हियर। एक जार्गन है यूनिट मैट्रिक्स, ये मैं भी कवर नहीं कर रहा हूँ, गूगल कर लेना, टाइम लग जाएगा। बहुत ही साधारण भाषा में समझाऊं तो, अगर मैं अपनी बनाना ड्रिंक बना रहा हूँ, मैं अपनी बनाना ड्रिंक बेच रहा हूँ मार्केट में, राइट, और ये मैं बनाना ड्रिंक 50 रुपए की बेच रहा हूं मान लीजिए, तो यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा इस 50 रुपए में क्या क्या रुपए मेरे खर्चे हो रहे हैं और फाइनली मेरे को कितना बच रहा है। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल ये होगा, इस बनाना ड्रिंक के अंदर जो फ्लूइड है वो मेरे को कितने का पड़ा है, जो ड्रिंक है, जो पैकेजिंग है वो कितने की पड़ रही है, उस पर कितना परसेंटेज मैं खर्च कर रहा हूँ, जो प्रिंटिंग है उस पर कितना परसेंटेज खर्च कर रहा हूँ, सेल्स टीम पे कितना खर्च कर रहा हूँ, मार्केटिंग पे कितना कर रहा हूँ, फाइनली मेरे पास कितना बच रहा है। सेल्स मार्केटिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स में, यू कैन डेफिनेटली अवॉइड सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। मतलब कि प्रोडक्ट की मोटा कॉस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करना, फाइनली ये दिखाना कि यू आर एंडिंग अप मेकिंग मनी इज व्हाट डिफाइनिंग योर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे लिया गया है, व्हाट इज अ बिजनेस प्लान। ओके, बिफोर द बिजनेस प्लान इज व्हाट आर गवर्नमेंट फंड्स।
गवर्नमेंट फंड्स की भी मैं बात नहीं करूंगा, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताऊंगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव्स इन स्टार्टअप एंड they have really changed the mood of the nation with that. I would not change the mood of the nation. They have really bolstered it. They have really added value to it. Change तो नहीं करा है, they have added strong value to it. तो a great example to this is Startup India. Startup India पे जाकर कोई भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो अगर जब आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया है, तो आप अपने स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड की तरह इनकॉर्पोरेट करिए. और वंस यू डू दैट, रजिस्टर योरसेल्फ ऑन स्टार्टअप इंडिया, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे. बट वो बेनिफिट, आई रिपीट, तभी मिलेंगे जब आप अपनी स्टार्टअप को रजिस्टर कर रहे हो एज एन एलएलपी और एज अ प्राइवेट लिमिटेड. मार्क दैट एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है ना. स्टार्टअप को शुरू करने से पहले गोल्डन पॉइंट, तीसरा गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं मैं, और इस पे एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आप सब लोग पढ़ सकते हो, गुड बुक बाय पीटर थील, इज कॉल्ड 0 to 1. क्या कहती है कि कभी भी स्टार्टअप को बिल्ड करने से पहले देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड इन इट. हमें क्या करना होता है कि हमें एक एमवीपी बनाना होता है. व्हाट इज एमवीपी? एमवीपी इज अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. यानी कि अगर मेरे को एक बाइसिकल बनानी है, तो मेरा एमवीपी कैसा होगा? मैं केवल 2 पहिए, बीच में एक डंडा लगाकर, हो सकता है ब्रेक भी ना हो. यानी कि बेसिक मॉडल अपने प्रोडक्ट का या सर्विसेज का एक इतना एलिमेंट्री मॉडल बनाना जिसमें कि मिनिमम रिक्वायर्ड फीचर्स डिफाइंड हो और जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सर्व कर रहे हो, कम से कम फीचर्स के साथ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूर्ण सर्व कर रहे हो, विदाउट एनी वैल्यू एडेड, अदर वैल्यू एडेड फीचर्स, विदाउट एनी शो ऑफ्स और विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीचर्स, वो मिनिमम प्रोडक्ट के साथ, वो मिनिमम सर्विसेज के साथ अपने आप को लॉन्च करना. वो जो मिनिमम सेट ऑफ फीचर्स होता है उसे हम एमवीपी बोलते हैं. इससे क्या होता है? एमवीपी बनाने से आपका टाइम बच जाता है, पहली चीज, आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है. तीसरा, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ग्रेट फिलॉसफी कॉल्ड एजाइल, वर्किंग इन एन एजाइल एनवायरनमेंट. तो प्लीज गाइस डू रीड दिस. देयर इज अ कीवर्ड जो मैं भी दे रहा हूं, एजाइल एनवायरनमेंट या एजाइल फिलॉसफी में, मेथोडोलॉजी में कैसे काम करा जाता है. सो एमवीपी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. इसे रिपीट कर रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट पूरा फाइनल फुल प्रोडक्ट मत बनाओ. सबसे पहले उसका एक छोटा सा रूप बना लो, एक एलिमेंट्री रूप बना लो, और वो एलिमेंट्री रूप ले जाकर बेचने की कोशिश करो. कस्टमर्स को दिखाओ, फीडबैक लो. और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, ऐसे अंकल, चाचा, मौसी, ताऊ, ताई जो मालूम है कि आपको गाली देंगे ही देंगे, जो कमियां निकालेंगे, उनके पास लेकर जाओ, ताकि बेशरम बनना सीखो और लोगों के फीडबैक को पॉजिटिवली लेना सीखो. कभी भी कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट की बुराई कर रहा है, टेक दैट एज पॉजिटिव. और याद रखना, हर कस्टमर की बुराई को बुराई मत मानना, अपने टारगेट कस्टमर की बुराई को बुराई मानना. इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले ये बहुत जरूरी होता है हम ये डिफाइन करें हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ सोता है, उसकी एज क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, साइकोग्राफिक प्रोफाइलिंग क्या है. वो डिफाइन करने के बाद अगर कोई इंसान आपके प्रोडक्ट की बुराई कर रहा है और वो आपके उस टारगेट सेगमेंट, उस प्रोफाइलिंग में फिट बैठ रहा है कि हाँ यार ये मेरा टारगेट कस्टमर, तो उसकी बात को सीरियसली लेना. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं. एक बंदे ने एक पिक्चर बनाई, एक पेंटिंग बनाई, और उसने मार्केट में लगाई और हर जाते हुए से बोला कि यार ये पेन लेना है, इसमें कमी बता दो यार, क्या कमी है. और शाम तक वो पिक्चर गायब हो गई, केवल कमियां भरी डॉट डॉट डॉट्स रह गई. तो हर आदमी से मत पूछो कि क्या कमी है, बट हाँ अगर कोई आदमी आपकी टारगेट मार्केट की डेफिनेशन में फॉल कर रहा हो तो उससे पूछो, उसकी बात को सीरियस लो, हर एक के पास मत जाओ. ठीक है ना. तो चाचा, मौसी, ताऊ, ताई, उनके पास तब जाओ अगर वो आपकी टारगेट मार्केट में फॉल कर रहे हैं तो. ठीक है. Any doubts so far? Priyanka, any doubt? Oh, sorry, not Priyanka. Rajesh, any doubt? Adarsh, any doubt? No, sir. You can ask doubts from me also. Absolutely clear, sir. Okay. Rajesh, Adarsh, Tathagat. No, sir. Okay. No, sir. Okay. Okay, great. ठीक है. इसके बाद I'll move on to the. Yes. So you explained till deep market analysis, and after that, what would be the final step to launch the product? नहीं, आपने कहाँ तक नोट कर लिया? मैंने मार्केट. ओके, दिस सेशन इज ऑन रिकॉर्डिंग. आप इसे ले लेना क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट. आई हैव लास्ट 10 मिनट्स. I understand. That's my question also. Like, अच्छा, बताइए. My question is, we have done, we have get the idea, okay, what we have to launch. We have the unique idea with us. Now we have started the market research. We have done the STP. We have done with the competitor analysis and the deep market analysis. Then after, what is the next process? How we go further?
मैंने मार्केट रिसर्च में बहुत स्टेप्स में डिफाइन करी है, यू नो दैट राइट। इसके बाद मैंने कहा है कि एमवीपी बनाओ, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ। जब मार्केट रिसर्च, ध्यान रखना दोस्तों, मैंने बहुत स्टेप्स में डिफाइन करनी है, बिल्कुल रट मार लेना इन स्टेप्स को। 10 साल का तजुर्बा है, शर्त लगा सकता हूं इस बात पर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही हूं। एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल इज एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू लर्न टू बिलीव योर हार्ट। एवरी मेंटर इज नॉट राइट, एवरी एडवाइजर इज नॉट राइट, सो आई एम नॉट 100% राइट यार, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज बिल्ड योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करने के पीछे जिंदगी मत खराब करो। अगर एक पूरा प्रोडक्ट 1 साल में बिल्डअप होगा तो अगले 3 महीने में उसका एक छोटा सा बच्चा रूप बिल्ड कर लो। अगर एक बड़ी डॉल बनानी है तो एक छोटी सी डॉल बना लो। अगर एक पूरी बाइसिकल बनानी है एकदम मस्त फाड़, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट्री रूप बना लो पहले, बेसिक मिनिमम फीचर जो उन प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहा हो, सॉरी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो, जिन प्रॉब्लम को आधार करके। मैंने फिर से स्टार्टिंग में बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम, जो लोग प्रॉब्लम को लेकर स्टार्टअप बिल्ड करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम बीज होती है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कोर फीचर्स होते हैं उनको लेकर एमवीपी बना लो। बाकी के जो फीचर्स होते हैं मैंने बताया था वो वैल्यू एडेड फीचर्स होते हैं, उनको बाद में ऐड करना, वो तुम्हें मार्केट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं वैल्यू एडेड फीचर्स, राइट। शुरुआत में वैल्यू एडेड फीचर्स पे वर्क नहीं करना है, जस्ट गेटिंग इंटिमिडेटेड विद द कॉम्पिटिटर। ये समझ में आया यहाँ पर? और किसी को डाउट? व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? वेरी गुड। एमवीपी के बाद बिजनेस प्लान बनाना है। अब आप लोग कहोगे यार बिजनेस प्लान तो पहले बनना चाहिए। बिजनेस प्लान वो लोग को पहले बनाना चाहिए जिनके पास इंडस्ट्री का तजुर्बा है। पूरा फोकस बिजनेस प्लान पे शुरुआत में मत लगाओ, फोकस प्रोडक्ट या सर्विसेज में लगाओ। मेरे पास इंडस्ट्री का तजुर्बा था तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने प्रोडक्ट बाद में बनाया, मैंने बिजनेस प्लान पहले बनाया था। तो आई जस्ट डिवाइडेड दिस स्टेज इनटू 2. इफ यू हैव अ रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years, draw the business plan first and then, or you can do both the things parallelly if you have that kind of expertise. Else, draw the product first, make the MVP first. और MVP बनाने के तुरंत बाद भी बिजनेस प्लान मत बनाना, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाना। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होती है? हम इस प्रोडक्ट को किन को बेचेंगे, कैसे मार्केट करेंगे, रेवेन्यू कैसे बिल्ड करेंगे, और उस MVP की छोटी सी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाओ अगले 3 महीने की, और उस MVP को बेचो। बेचना, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलिडेशन। अपने प्रोडक्ट को दोस्तों मैं बता रहा हूं कभी फ्री में मत बांटना। शुरुआत में फ्री में बांटने का भी एग्जांपल बताऊंगा कब बांटना चाहिए। इन जनरल ट्राई टू डू अवे विद फ्री सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट। सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्नॉलेजमेंट कि कस्टमर का तुम्हारे प्रोडक्ट में भरोसा है। कि फ्री का बांटोगे तो राय तो बहुत देंगे, बट ट्रू राय वो होती है जो पैसा देता है। धंधे में पैसा इज द रेस्पेक्ट कि व्हाट यू हैव बिल्ड इज वर्थ इट। तो पैसा नहीं आ रहा तो बॉस इसका मतलब दिक्कत है। फिर उससे पूछो कि भाई क्यों नहीं खरीदना चाह रहे हो, वो गाली देगा, उसकी गाली को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। कस्टमर को प्यार करना सीखो यार, उसके हर फीडबैक को डोंट टेक इट टू पर्सनली, बट डोंट टेक इट टू लाइटली टू, ठीक है। तो प्रोडक्ट की छोटी सी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर अपने एमवीपी का फेज 2 बनाओ, फिर से रिबिल्ड करो। बहुत कमियां मिलेंगी देखना, और लगेगा अरे यार ये नहीं सोचा, अरे यार ये नहीं सोचा। तो एमवीपी बनाने का 3 महीने अपने आप को देने हैं। एमवीपी बनाने में अगर सर्विसेज बेस्ड कंपनी हो, टेक बेस्ड कंपनी हो, 3 महीने मेरे हिसाब से, सेम फॉर द प्रोडक्ट मेरे हिसाब से 3 महीने दे सकते हो। मैं हर फेज में ना टाइम इंटरवल भी बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि स्टार्टअप बिल्ड करना इज सच अ सीरियस प्रोसेस। और ये सब टाइम मैं तब बता रहा हूं जब आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो अपनी स्टार्टअप के लिए, वो टाइम ड्यूरेशन। तो 3 महीने अपने एमवीपी बनाने को दिए, फिर 3 महीने गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी में जाओ। सेकंड इंपॉर्टेंट एजम्पशन, ये मैं टाइम ड्यूरेशन उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो किसी इंडस्ट्री में जिनके पास पहले से तजुर्बा नहीं है, और पहले से एक बड़ी टीम नहीं है, और एक्सपीरियंस लोगों की टीम नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस लोगों की टीम है, डेफिनेटली दे कैन कट डाउन दिस शॉर्ट पाथ, सॉरी दे कैन कट डाउन दिस पाथ, ठीक है। फिर उसके बाद 3 महीने मार्केट में अपने वो जो छोटा सा रूप है उसमें बहुत सारी कमियां होंगी, क्योंकि वैलिडेटेड फीचर्स नहीं, मुझे मालूम है बेचने में तकलीफ होगी, तब भी लेकर जाओ, बेचने की कोशिश करो। देखो यहां पे मिक्स ऑफ द 2 थिंग्स लेके चलना, ट्रायल भी कराना फ्री के, बट सारा ही फ्री पे मत बैठ जाना, बेचने की कोशिश जरूर करना। मेक अ मिक्स ऑफ लाइक 50-50 और 70-30, बैलेंस इट विद रिगार्ड्स टू योर ओपिनियन। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू शुड लर्न टू टेक दैट कॉल। 100% फ्री मत बांटना और 100% बेचने के पीछे भी मत जाना, ये भी मैं कह रहा हूं, दोनों का मिक्स लेकर चलना, ठीक है। फिर 3 महीने बाद अपने एमवीपी को रीडिफाइन करो, फिर से रीबिल्ड करो। अब अपने एमवीपी में एक वैल्यू एडेड फीचर्स डालना शुरू करो, यहां से अपना बिजनेस प्लान बनाना शुरू करो। बिजनेस प्लान में क्या क्या आता है? मिशन, विजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या करना चाह रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट,
व्हाट इज योर टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर क्या खाती है, पीती है, उठती है, बैठती है। इनफैक्ट अभी तक मेरा जितना फ्लो रहा है आप लोगों को समझाने का, बिजनेस प्लान का ही एक सीक्वेंशियल फ्लो रहा है। फिर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट कितना बड़ा है, कितनी साइज है, राइट, उसमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है, उसमें स्वॉट क्या है, और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के बाद फिर आपके नेक्स्ट 5 ईयर 3 ईयर प्लान के, फर्स्ट ईयर प्लान क्या है, 3 ईयर क्या है, 5 ईयर क्या है, उसके बाद आपको कितने पैसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस प्लान कैसा बता रहा हूं, कितने रिसोर्सेज मतलब हर आदमी से लेके, कंप्यूटर से लेके, बिजली से लेके, रियल एस्टेट से लेके, कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और कितना पैसा चाहिए, और आपके पास कितना पैसा है और ये पैसा कितने टाइम में खत्म करोगे। और फिर इतना पैसा अगर आपको चाहिए, मान लीजिए किसी आदमी ने ये निकाला इस स्टेज पे आके कि मेरे को ये रिसोर्सेज बिल्ड करने के लिए अगले 1.5 साल में इतने रिसोर्सेज बिल्ड करने के लिए मेरे को 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, तो 1.5 करोड़ में से 35 लाख मेरे पास है, यानी कि बाकी का 75 या सॉरी जितना भी लाख बैठा ये मैं उठाऊंगा, 1 करोड़ 15 लाख रुपए मैं रेज करूंगा। तो उस पैसे के बदले मैं इन्वेस्टर को कितने परसेंटेज की हिस्सेदारी अपनी कंपनी में दूंगा, ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अब यहां तक जब आप कर लोगे, इसके बाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जिसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3 महीने, अगर आप नए बंदे हो 3 महीने लगेंगे फिनेंशियल्स बनाना। फिनेंशियल्स का मतलब ये होता है कि फिनेंशियल आइडियली तब बनाने चाहिए जब आप अपने एमवीपी की फेज 2 लॉन्च कर लो। एमवीपी की फेज 2 लॉन्च करने पर आप एक मैच्योर्ड कैंडिडेट हो जाते हो। जनरली एमवीपी फेज 1 एंड फेज 2 आइडियली शुड टेक लाइक 3 to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, और एमवीपी की फेज 2 लॉन्च करने के बाद अगेन अपने आप को 3 महीने का टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद अपने बिजनेस प्लान को इवॉल्व करो, फिर उसके बाद अपने खर्चे निकालो सारे के सारे, व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म गोल्स, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स, उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो खर्चे सारे के सारे कैलकुलेट करो, और फिर अपना फाइनेंशियल प्लान बनाओ। फाइनेंशियल प्लानिंग वुड टेक यू 1 to 3 मंथ्स। अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, वो एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत रिवाइज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, आज की तारीख में केवल प्रोडक्ट दिखाकर पैसे नहीं मिलते। किसी भी इन्वेस्टर से जाओगे, भैया इन्वेस्टर के नजरिए से देखो तो क्या कहेगा, इफ आई गिव यू 1 करोड़ रुपीज, हाउ मच वुड यू रिटर्न मी एंड इन व्हाट टाइम ड्यूरेशन, और इसके बदले में तुम मुझे कितने हिस्सेदारी दे रहे हो। So there is a jargon called ask. What is your ask? Please note it down. What is your ask? Ask, ASK, A for apple, S for Shimla, K for Karnataka. So इसको गूगल कर लेना, समझ लेना। There is something called pre-money valuation and post-money. I will not explain it. Google it. Learn on your own. I'll not explain it. What is pre-money valuation? What is post-money valuation? Google it. Right? तो यहाँ पर इस स्टेज पे जाके आपका सबसे पहली एक पिच डेक मांगेगा इन्वेस्टर। सबसे पहले एक टीजर पिच उसे भेजो। टीजर पिच क्या होती है, 3 स्लाइड्स में अपने प्रोडक्ट को समझाना। अगर वो इंटरेस्ट होगा तो पिच डेक उसे पूछो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे प्रोडक्ट के बारे में, आई सेंड यू अ पिच डेक। पिच डेक जनरली 10 to 12 स्लाइड्स की आपके पूरे बिजनेस प्लान को समझाते हैं। 10 to 12 स्लाइड्स में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप कौन हो, क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या सॉल्यूशन है, क्या मार्केट है, व्हाट इज द मार्केट साइज, मार्केट में कितना पोटेंशियल है, आप कितने बड़े बनने वाले हो, आपने अभी तक क्या झंडे गाड़े हैं, अभी तक आपकी क्या मार्केट रिसर्च रही है, क्या वैलिडेशंस रही हैं, एमवीपी बनाने के बाद क्या रिजल्ट्स आए, कितना माल बिका, कितने कस्टमर ने तारीफ करी, कितनों ने बुराई करी, और फिर फाइनेंशियल्स क्या हैं और कितने रुपए आपको रेज करने हैं, और इसके बदले में आप इन्वेस्टर को कितना परसेंटेज हिस्सेदारी देने वाले हो अपनी कंपनी में। और आखिरी में पिच डेक के द लास्ट स्लाइड इज आपकी टीम कौन है, हु आर यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ any startup is the team and the team. Ideas की सक्सेस उसकी टीम से ड्राइव होती है, आइडिया से ड्राइव नहीं होती है। ठीक है, सो इस एक टिपिकली मैं जल्दी पिच डेक का स्ट्रक्चर बता दिया। तो किसी भी इन्वेस्टर को पिच करने से पहले एक टीजर पिच भेजो, छोटी सी 3 स्लाइड में या 1 पेज में एक सुंदर सा पेजर बनाओ। आई विल गिव यू अ फॉर्मेट, शेयर इट विद यू। एक सुंदर सा पेजर बना के अपने आइडिया को डिफाइन कर दो। उसे पसंद आएगा तो बोलेगा कि ओके सेंड मी अ पिच डेक, फिर अपनी पिच डेक भेजो। मार्केट रिसर्च जब करो तो मार्केट रिसर्च की वीडियोस बनाओ। मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल्स दिखाने वाला था पिच डेक और मार्केट रिसर्च वीडियोस के। आई डोंट नो इफ आई विल हैव दैट टाइम, आई विल ट्राई टू मेक दैट अप। तो मार्केट रिसर्च की अपनी वीडियो भेजो, कस्टमर्स की वैलिडेशंस, टेस्टिमोनियल्स भेजो। फिर जो भी एमवीपी मैंने बताया था कि सबसे पहले एमवीपी बनाओ, एमवीपी को बिल्डअप करो, उसकी जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो शेयर करो। वहां से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इन्वेस्टर के अंदर। यहां तक करने से पहले इन्वेस्टर के पास जाने से बचना। अब बहुत सारे लोग होंगे सर यहाँ तक करने में तो सर मेरा 50 लाख का खर्चा आ जाएगा, मेरा इज अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप, सर मैं एक्चुअली एक एरोप्लेन बनाने वाला हूँ, उसके बनाने में सर 50 करोड़ रुपए लगेंगे, हाउ डू आई गो अबाउट इट। तो व्हेन यू आर अ प्रोडक्ट इंटेंसिव स्टार्टअप देन यू नीड टू जॉइन एन एक्सीलरेटर और एन इंक्यूबेटर।
पहले ये बहुत इजी था कि यार फिर भी चलो सीड स्टेज पे बड़ी फंडिंग मिल जाया करती है। राइट नाउ द ट्रूथ एटलीस्ट इन इंडिया, मैं इंडिया के परिवेश में बात कर रहा हूँ, मेरा तजुर्बा यहाँ से ज्यादा संबंधित है, तो मेरी जितनी भी बातें इंडिया के परिवेश में आप लेना, भारत के परिवेश में, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से राइट नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विटनेस्ड इज कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर रियली गो विद द स्टार्टअप दैट हैव अ प्रोटोटाइप, that have a defined product, that at least has an MVP. Really based on an idea, expecting an investor to invest and give you or lend you money in form of debt or in form of equity would not be very nice. तो क्या कर सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं फिर से। क्राउड फंडिंग, व्हाट इज अ क्राउड फंडिंग? गूगल इट, आई विल नॉट टीच इट, गूगल इट। क्राउड फंडिंग करो, लोगों से उठाओ, पब्लिक से पैसा उठाओ, दोस्तों के पास जाओ, मम्मी पापा के पास जाओ, जब उन्हीं से नहीं पैसा उठा पा रहे हो अपनी सेविंग्स चेक करो, टीचर्स के पास जाओ, कॉलेज के पास जाओ, पैसा उठाओ दोस्तों से, क्राउड फंडिंग करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर को ज्वाइन कर लो, दैट विल रियली शेप यू आउट फॉर दोज पीपल हु डू नॉट हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस। इफ यू हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस तो यार मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ साल अगर इंडस्ट्री में काम करा, पैसा उठाना बड़ी बात नहीं होगी, इतनी रैपो बिल्ड कर ली होगी। और जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, बहुत कॉन्फिडेंट है, जरूरी नहीं है स्टार्ट इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर में जाओ, एक्सीलरेटर में जरूर चले जाओ अगर अच्छा एक्सीलरेटर है। इंक्यूबेशन जरूरी नहीं है उन लोगों के लिए, बट इफ यू डोंट हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद एन इंक्यूबेटर, और बेटर इफ यू कैन स्टार्ट विद सम रियली गुड एक्सीलरेटर्स। One of the amazing accelerators that I really admire, and they in fact give money, is 100x. I really admire the philosophy, the way they work. Is one of the examples. There are a lot many. India right now is filled with amazing accelerators in the market. इंडिया का इकोसिस्टम यार मैं बता रहा हूँ, देश में ना आग लगी हुई है। मैं जितना कुछ होते हुए देख रहा हूँ, मैं डंडा ठोक के कह रहा हूँ कि आने वाले अगले 20 साल देख लेना, हम लोग संसार में बहुत आगे निकलने वाले हैं। बहुत 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 तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, पहले 2 को पीछे छोड़ ही देंगे बहुत आराम से। मतलब मुझे नजर आ रहा है जो एनर्जी है यार, आई कैन सेंस इट। तो इंडिया में बहुत कुछ है, बस उसे अच्छे से ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताए, क्राउड फंडिंग, एक्सीलरेटर, इंक्यूबेटर, इनके पास जाओ, यहाँ पे अपने आइडिया को शेप आउट करो। और फिर अगर यहाँ पे चले जाते हो, एक अच्छे एक्सीलरेटर के पास चले जाते हो, एक्सीलरेटर को इंक्यूबेटर से ज्यादा प्रायोरिटी देना, और प्राइवेट एक्सीलरेटर को ज्यादा प्रायोरिटी देना। आई वुड ओपनली से रादर देन अ गवर्नमेंट रन इंक्यूबेटर, प्राइवेट एक्सीलरेटर को जो ऑलरेडी किसी वेंचर फंड द्वारा रन किया जा रहा है उसे ज्यादा प्रायोरिटी देना। आई वुड ओपनली से दैट, आई डोंट माइंड दैट, ठीक है ना। बहुत कमियां हैं अभी हमारे गवर्नमेंट रन इकोसिस्टम में, बट बहुत अच्छी बात ये हुई है गवर्नमेंट द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया के इनिशिएटिव लिया गया है, अच्छी बात ये हुई है कि they have really given a positive note to the mood of the entire nation. एक positive push मिला है उसे, ठीक है। तो go with some really good accelerators. There are lot many good accelerators यार। There is a Nexus in Delhi. अपने सिटी में ढूंढो कौन से, बहुत सारे अमेजिंग अच्छे accelerators हैं। I'm just naming 1 or 2. There are lot many. तो उन्हें अच्छे से ढूंढो, देखो उनके बैचेस कब शुरू होने, ज्वाइन करो। भाई जितने भी लोगों को लगता है ना आइडिया चोरी हो जाएगा, घर बैठ जाओ, किसी का कोई आइडिया चोरी नहीं होता। आइडिया इज नो वंस मोनोपोली। आइडिया किसी को भी सपने में आ सकता है। आपका आइडिया, अगर किसी भी आदमी को आज ये लग रहा है ना आपका आइडिया यूनिक है, तो भाई आप गलत हो। आपके आइडिया में अगर आपने इसका मतलब मार्केट रिसर्च नहीं करी है, और आपको लग रहा है कि आप पहले प्लेयर हो, बहुतों को लगता है हम मार्केट के पहले प्लेयर हैं, तो बल्कि उल्टा सवाल करना, ऐसा क्या है कि इस आइडिया को लेके बाकी के लोग नहीं उतरे। ऐसा तो नहीं है आइडिया ही बेवकूफी भरा हो या नुकसान भरा हो, जो इतने बाकी सारे लोग क्या बेवकूफ बैठे, क्या आप अकेले सुपरमैन हो? तो do not overestimate yourself and do not underestimate yourself too at the same time. तो कभी भी ये चीजों में मत पड़ना कि मैं एनडीए साइन कराऊंगा तभी मैं आइडिया बताऊंगा, मेरा आइडिया चोरी हो जाए। आइडिया किसी का चोरी नहीं होता, एग्जीक्यूशन में सब कुछ होता है। आइडिया चोरी होते तो मैं भी अपने 5 आइडिया बता सकता हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखा दो, नाम बदल दूंगा। बल्कि छोड़ो, नाम क्या बदलूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं इन्वेस्ट कर दूंगा भाई। आई हैव एन अमेजिंग आइडिया, आई रियली बिलीव इफ समवन कैन रियली डू दैट। आई रियली वांट टू हैव अ नोट जो कि जीपीएस ट्रैकेबल हो। बहुत सारी चोरियां होती हैं, लोगों की दुकानें लूट ली जाती हैं। आई ओपनली गिव इट एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इट in developing this product. If anyone can come up with a geo-trackable currency note जो कि एक गड्डी में लगाया जा सके, ताकि दुकान में अगर किसी की पैसे की चोरी हो जाती है तो हम ट्रैक कर सके वो गड्डी कहाँ का मूव करिए। If anyone can do it, I'm ready to invest in it. और इस पे ट्रायल्स हुए हैं, इस पे लोगों ने बनाए हैं। That happened during नोटबंदी टाइम। तो ओपनली अपना एक आइडिया शेयर करा है, चोरी कर लो, किसी को करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और अगर किसी को वाकई में बिल्ड करना है, रेडी टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
I have a startup idea. I'm sure it will succeed, but I don't know where to start. ये मैं बता चुका हूँ how to start. I have a unique idea, but I fear getting it disclosed. That's a stupid thought. Unique idea, but I fear getting it disclosed. A stupid thought, in my opinion. I have an idea, but I don't have the product ready. Can I raise money? I've told you it's a very hard way to raise money without having a product ready. It's better to go to an accelerator or an incubator or do a crowdfunding. Raise money by crowdfunding. I've told you to Google it. Indigo, बहुत सारे platforms हैं for crowdfunding. Google it. Google them, sorry. Then how to find an investor? How to find an investor? How to find an investor? इसे आज नहीं cover करूँगा, लंबा हो जाएगा. Really have like 5 or 10 minutes or so. How to pitch an idea to an investor? There's a pitch deck. I've told you the format of it. If time permits, I'll share you 2 pitch deck as an example. I have a startup idea. How to validate its success. Customer से बड़ी और sales से बड़ी कोई success ही नहीं होती जो startup idea को validate करते. Customer feedback and sales. Sales is the biggest parameter to validate your success of your idea. Now, I'm open for questions over here.